Now class, we will discuss the type of ions on the basis of their valency. Okay, if the valency of any ion is 1, then it will be known as monovalent ion. For example, the some of the monovalent ion are present here. For example, sodium, as it has 1 unit charge, so it will be called the monovalent ion. Chloride ion, the valency is 1. Potassium ion, valency is 1. Iodide ion, valency is 1. That's why these all are known as monovalent ion. Now we will talk about some compound ion have the valency 1. That is hydroxide ion 1. Nitrate ion, negative charge, 1 valency. NH4 plus means ammonium ion have the valency 1. Okay, all these type of ion are known as monovalent ion. Now what about divalent ion? Divalent ion are those which have the valency 2 or charge 2 on them. ठीक है, 2 यूनिट चार्ज अगर किसी भी आयन पे है देन इट विल बी नोन एज divalent ion. For example, Mg2 plus, okay, have the valency 2. Ca2 plus have the valency 2. Carbonate ion 2 minus have the valency 2. Oxide ion 2 minus have the valency 2. Sulfur ion have the valency 2, and sulfate ion have also the valency 2. That's why all these ion as have the valency 2, so termed as divalent ion. Okay, now trivalent ion. ट्राईवेलेंट जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि द वैलेंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ आयंस आर 3. ओके, सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्राइड आयन हैव द वैलेंसी ट्रिपल माइनस. ओके, द फॉस्फेट आयन हैव द वैलेंसी ट्रिपल माइनस. द फेरिक आयन have the valency triple plus. All these type of ions have the valency 3, so they will be known as trivalent ion. Okay, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको आपको अच्छे से समझना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स. सम ऑफ द आयंस हैविंग 2 टाइप ऑफ वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर हैव 2 valencies, 2 and 1. Like it, the mercury atom have the 2 valencies 1 and 2, and the ion of iron also have 2 type of valency 2 plus and 3 plus. Okay, that's why these ion are named differently. अब यहाँ कैसे इनको अलग अलग नाम दिया गया है इसको हम देखेंगे. जो लो वैलेंसी वाले आयन हैं उनको हम अस आयंस कहते हैं. इनके नाम के आगे OUS लगा दिया जाता है, इसलिए मैंने इनको बोल दिया अस आयन. ठीक है, जो आयन हायर वैलेंसी रखते हैं उनको हम IC या इक आयन बोलते हैं, और उनको बोल दिया आयंस हैविंग हाई वैलेंसी. तो इनके नाम के आगे हम क्या जोड़ देंगे? IC जोड़ देंगे. अब देखिए कैसे मैंने इसको इंटरप्रेट किया हुआ है. देखिए ज़रा कि Cu plus मीन्स कॉपर 1 आयन. कॉपर 1 आयन मीन्स कॉपर हैव द वैलेंसी 1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज Cu+ आयन. एंड Cu2 plus as it has higher valency than the previous one, then it is written as cupric ion और कॉपर 2nd आयन. आपको दोनों तरीक़ों से इसका नाम लिखना आना चाहिए. If there is the valency of copper is low, that is 1, then it can be written as Cu+ ion or copper 1st ion. And if has the valency high, copper has the valency high, that is +2, then the name of this ion will be cupric ion and the authentic name will be copper 2nd ion. Okay, like it, the mercurous and mercuric ion can be written. The mercurous ion have the valency 1, so also written as mercury 1st ion, and the mercuric ion has the valency 2, so it can be written as mercury 2nd ion. Now we will talk about very important ion, that is iron. Iron if has +2 valency, then it is known as iron 2nd ion or ferrous ion.
ओके, यहाँ पे केस थोड़ा चेंज हो जाता है। आयरन के केस में जो लोअर वैलेंसी है वो 2 है और हायर वैलेंसी है वो किसकी है उतनी, उसकी वैलेंसी है +3। हायर वैलेंसी ऑफ आयरन इज +2 एंड हायर +3 एंड लोअर वैलेंसी ऑफ आयरन इज +2। ओके, सो in higher valency the name of iron, this iron will be ferric iron or iron third iron, and the low in the case of lower valency it has the name ferrous iron or iron second iron. Okay, very important discussion regarding to the valency of iron. Now we will discuss about some ions present in this table, so you have to write this table in your notes, and also I recommend you and also pressurize you to learn all the ions with their valency and their name. It is very important to write the formula of the chemical compound. Okay, so you have to write, यहाँ देखिए मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट आयन, इन सब को अलग अलग केसेस में यहाँ पे शो किया गया है, एंड यू हैव टू लर्न all the name and valency of these ion. Now I will discuss about some of the ion like monovalent. अगर मैं बात करूँ मोनोवेलेंट आयन की, तो हाइड्रोजन का मोनोवेलेंट कैटायन होगा H+ हैविंग द वैलेंसी 1+, सोडियम 1+, के पोटेशियम 1+। इसको आप 1+ का मतलब है कि ये आयन पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। ओके, इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम 1, इसकी वैलेंसी को 1- बोल देते हैं, ठीक है, जिसकी वैलेंसी माइनस में है तो उसको 1- बोल दिया। सिंगल माइनस चार्ज मीन्स 1-। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, ओके, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ओके, HCO3 एसीटेट आयन, very important regarding to form the formulae of some chemical compounds. Like it, the trivalent ion having the valency 3, for example ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एल्यूमिनियम 3+, then it will known as trivalent ion, chromium C3+, ferric and auric गोल्ड का जो +3 स्टेट वाला आयन होता है इसको ऑरिक बोलते हैं, और +2 स्टेट वाले को ऑरस बोलते हैं, ठीक है बेटे। एंड सम ऑफ द आयन्स आर प्रेजेंट इन डाइवेलेंट स्टेट, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट हैव द फार्मूला CO3 2-, क्रोमेट आयन CrO4 2- हैविंग द वैलेंसी -2, ऑक्साइड आयन बताया हुआ है मैंने पहले भी, O2- having the valency 2-, peroxide ion O2-, O2 2-, thiosulfate H2O3 and sulfite, and also some of the trivalent ion of the compound ion state, which are explained as borate BO3 triple-, nitrite N3-, and phosphate PO4 3-. Okay, so these are the table of some ions. So you are requested to write all these ions in your copy with the valency of these ions and learn very seriously. Okay, now class, we will discuss about very important point regarding to this chapter, to write the chemical formula. किसी आयन का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ठीक है, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। अगर आप केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम आयंस का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो लिखेंगे वो होगा पॉजिटिवली चार्ज आयन मीन्स कैटायन, उसके बाद लिखेंगे हम कोई नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायन। ओके, और उसके बाद इस तरीके से उन नंबर्स ऑफ आयंस को हम बैलेंस करेंगे कि उनकी वैलेंसी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ HCl इज एन आयोनिक कंपाउंड
whenever its formula is written in the way that the symbol first we have to write the symbol, हाइड्रोजन का सिंबल एंड देन क्लोराइड का सिंबल, और उसके बाद उनकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1. सो द फार्मूला ऑफ HCl विल बी of hydrogen chloride will be HCl. Okay, now the second formula, hydrogen sulfide. As you know, hydrogen has the +1 valency and sulfur has -2 valency, so the formula of this compound will be H2S, like it. यहाँ पे इस बुक में इन आयंस के ऊपर चार्ज नहीं दिखाया गया है, डायरेक्टली इनकी वैलेंसी को नीचे लिख दिया गया है. तो आप चाहें तो इनकी वैलेंसी को भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू राइट द कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की 1, सो द फार्मूला विल बी CCl4. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एज यू नो वेरी वेल हैज़ द वैलेंसी 2+ एंड क्लोरीन हैज़ द वैलेंसी 1-. So the formula of magnesium chloride will be MgCl2. ठीक है ना. अब ये चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है बच्चों कि जब भी हम चार्ज को लिखते हैं तो इस तरीके से उसको लिखना चाहिए कि वैलेंसी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे. तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए आप कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है, तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिया, Cl से, और क्लोरीन की वैलेंसी 1- है तो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिया, Mg से. ठीक है, तो Mg तो सिंगल लिखा जाएगा और Cl के आगे हमने 2 लगा दिया है. तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर Mg की वैलेंसी 2+ है तो यहाँ पे Cl के हमें 2 आयन चाहिए होंगे जिनके पास 1 नेगेटिव वैलेंसी होगी. तो 2+ और 2- आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें ओवरऑल जो हमें आयनिक कंपाउंड मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से हम एक और आयन को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखिए, इट इज़ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एज यू नो, एल्यूमिनियम हैज़ द +3 वैलेंसी एंड ऑक्सीजन हैज़ -2 वैलेंसी. ओके, now we will cross multiply these valencies to the respective ions. अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+. अब 3+ को कैसे हम जो है बैलेंस करेंगे, ठीक है ना. तो अगर हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी को बैलेंस करना चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी सबसे पहले नीचे लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी उसके नीचे लिखते हैं और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, Al2O3, जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Al2O3. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 3 × 2 यानी 6 एंड 3 × 2 यानी 6+ और 6- आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी ओवरऑल कंपाउंड हमारा न्यूट्रल बन रहा है. ठीक है, वेरी वेरी इजी कंसेप्ट. नाउ कैल्शियम ऑक्साइड. As you know, the calcium has the +2 valency and oxygen also have the -2 valency. So +2 and -2 will cancel out from each other. So the total compound will be formed, will be saying as CaO. Okay. Now some more important compound like the compounds of compound ion. For example, aluminium hydroxide. In aluminium hydroxide, please see here that aluminium has the valency 3+ and hydroxide has the valency 1-. तो इसको भी हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि Al1 से मल्टीप्लाई करने पर Al आएगा और OH3 से मल्टीप्लाई करने पर OH3 आएगा. लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखने वाली है कि 3 इज़ मल्टीप्लाई बाई होल द OH. तो हम OH को यहाँ पे जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा. सिंपल अलजबरा है ये. इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई 3 to AB, A into B, then we have to multiply
the 3 and write the AB in bracket. Okay, then 3 is multiplied by to A as well as to B. ओके, इसी तरीके से अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है OH से, तो 3 की मल्टीप्लाई जिस तरीके से O से हो रही है उस तरीके से H से भी हो रही है, इसीलिए हमने OH को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पुट किया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एल्यूमिनियम सल्फेट, द नेक्स्ट कंपाउंड. एज यू नो, अमोनियम सल्फेट, सॉरी, अमोनियम हैज़ द +1 valency and sulfate ion has the +2 valency. So in this compound we have to write the valency of both the ions, writing to them in the bracket. Okay, तो अमोनियम को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4, इसको बोलेंगे NH4 होल ट्वाइस, एंड सल्फेट आयन एज इट इज़ मल्टीप्लाई by 1, so no bracket is required to written this sulfate ion in the formula. So the overall formula of ammonium sulfate is NH4 whole twice SO4, और इसको हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और AlOH whole thrice. So class, it was a very important class regarding to writing the chemical formula, and I request to you all to practice more and more at your home. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे.